دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادوں کا انکشاف۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی جائیدادوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ سب سے زیادہ جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں بھارتی شہری پہلے نمبر پر۔ 29,700 بھارتی شہریوں نے 35,000 جائیدادیں خرید رکھی تھیں۔ بھارتی شہریوں کی جائیدادوں کی مالیت تقریباً 17 ارب ڈالر ہے۔ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر۔ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پاکستانیوں کی پراپرٹیز کی قیمت 11 ارب ڈالر۔ 19,500 برطانوی شہریوں کی دبئی میں 22,000 جائیدادیں۔ 8,500 سعودی شہریوں نے 16,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں، ریٹائرڈ سرکاری افسران کے نام بھی شامل۔ ایک پولیس چیف، ایک سفارتکار کا نام بھی شامل۔ دبئی میں جائیدادوں کا ڈیٹا واشنگٹن میں قائم NGO نے حاصل کیا۔ جائیدادوں کا ڈیٹا آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نامی تنظیم سے بھی شیئر کیا گیا۔ بلاول بھٹو آصفہ بھٹو کے ملکی و غیر ملکی احساسات الیکشن کمیشن اور FBI میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے ضلع وطنی میں پرورش پائی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی کی املاک اولاد کو وراثت میں ملی۔ ترجمان بلاول بھٹو کا رد عمل: اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ جائیداد کو جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا۔ ایک برس قبل جائیداد کو فروخت کر دیا تھا۔ فروخت کردہ جائیداد کی رقم سے چند ہفتے قبل ایک اور پراپرٹی خریدی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان: ہمارے احساسات پہلے سے ڈکلیئرڈ اور عوام کے علم میں ہے۔ جائیدادیں الیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس اتھارٹیز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ شرجیل انعام احمد: دبئی میں میری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے۔ جب بھی اچھی گاڑی یا پراپرٹی کا ذکر ہوگا تو میرا نام سب سے اوپر آئے گا۔ پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ فیصل ووڈا کا موقف: دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں۔ جائیداد کو گزشتہ 6 سال سے رجسٹرڈ اور ڈکلیئرڈ کیا گیا۔ 2018 میں نامزدگی فارموں پہ بھی جائیداد کا اعلان کیا تھا۔ شیر افضل مربت کا رد عمل: سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقہ سمبھازا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ کے دوران 3 دہشت گرد جان نوازل، قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر بابر خان نے جام شہادت نوش کیا۔ 33 سالہ شہید میجر بابر خان کا تعلق ضلع میاں والی سے ہے۔ علاقے میں کسی دوسرے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے حوصلوں کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ ISPR آڈیو لیکس کیس میں مجھے پیغام دیا گیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار کی عدلیہ میں مبینہ مداخلت کی نشاندہی۔ پیغام دیا گیا، سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس سے انصاف کے عمل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ PTA سے متعلقہ مقدمات کے بارے میں مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے حربہ ہوتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے مبینہ خط کا متن: اٹارنی جنرل نے عدلیہ میں مداخلت کے تاثر کی نفی کر دی۔ حکومت یا کوئی ریاستی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے کسی آفیسر نے کوئی رابطہ کیا۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹو میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ریاست کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں۔ حساس معاملات میں کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ یہ کمیونیکیشن اٹارنی جنرل آفس یا ایڈوکیٹ جنرل آفس سے کی جاتی ہے۔ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے درخواست کی گئی تھی کہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے تاکہ حساس معاملات پبلک نہ ہوں۔ اس سے کمیونیکیشن کو غلط رنگ دیا گیا۔ خط لکھنے کا مطلب کوئی مداخلت نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کو لکھے گئے خط کا غلط تاثر لیا گیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور ابان کی گفتگو: صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا، کسی نے نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ قومی سلامتی کے معاملات کو خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس دوہری شہریت ہے تو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ اس ایک معاملے پر قومی سلامتی پر سوالیہ نشان نہیں اٹھنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس: تاثر دیا گیا، انٹیلیجنس ادارے ججوں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔
खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटार्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटार्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वज़ारत दिफा खुफिया इदारों FIA पैमरा को नोटिस जारी। PTI डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। सबसे ज़्यादा तशवीश ये है जज के कॉन्फिडेंशियल मामलात लीक हुए। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली की सफरी दस्तावेजात कैसे लीक हुई। जैसे मोहसिन अख्तर क़यानी के सब्सार जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों सहाफ़ी तंजीमों पैमरा को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए सदर PFUJ अहमद बिलाल सूफ़ी को भी नोटिस। अदालत ने पैमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाज़त मिल गई। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी नकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुंच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फ़रीक है, उनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हकूक़ का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में सालीन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस कादी फायरीसा का इस्तफसार। नैब तरमीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या विफाक को कोई हक नहीं अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? वकील मखदूम अली खान का जवाब। विफाक को पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी की बुनियादी हक़ के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा के दलाइल। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील। पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शन, दर्जन से ज़ायद शिकों का इजाफा, मुख्तलिफ जराइम की सज़ाएँ कई गुना बढ़ा दी गई। नए मुजवज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक ख़ुसूसी सेक्शन मुख्तस। हुकूमत या आवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सज़ाएँ 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। चाइल्ड अब्यूज़ और ख़वातीन हरासगी से मुताल्लिक़ केस के मुलज़िमों का ट्रायल इन कैमरा हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में, सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वज़ारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स रहमदकान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को बड़ी तरजीह दे दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी कमीना के इजलास एपलेट ट्राइब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू रूल 2024 की मंजूरी। नए रूल्स के तहत एपलेट ट्राइब्यूनल्स के अरकान की तैनाती की जाएगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। कमेटी में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। तोशा खाना तहाइफ के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। ACC के 7 मई के इजलास में फैसलों की तौसीक, सरमायाकारी मुहतसब की तैनाती की कवानीन में तरमीम की मंजूरी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले में इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म का ग्वादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए बड़ा कदम। दरामद शुदा अशिया का एक ख़ास तनासब ग्वादर बंदरगाह से दरामद करने की हिदायत। CPEC फ़ेज़ 2 पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को आपस से रवाबत मरबूत करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी के तहत मनसूबों से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के म्यूनसिपल का दौरा। मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदार पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा है कि बेहतरीन इलाज पर गरीब का हक है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फ़ाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आपाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का उसूली फैसला। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहदा होने का इम्कान। IMF का कर्जा प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तोसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माली साल 2025 के बारे में वाज़ेह विजन होगा। रवावा गर्मी उरूज पर होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। दादू में जद्दा हरारत 47 और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कराची में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड करने का इम्कान है। पेशावर में 36, कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान, जबकि मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के अरकान की मुलाकात। 3 करोड़ का इनामी चेक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कौमी हॉकी टीम के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हॉकी टीम को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि हॉकी की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो कुछ हुआ करेंगे, हुकूमत की तरफ से टीम को भरपूर सपोर्ट और ऑनरशिप मिलेगी। मौजूदा हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने माजी की कौमी हॉकी टीम की याद ताज़ा की। कौमी खेल से मुतालिक अच्छी खबर बाइस फ़ख्र है। हॉकी के खिलाड़ियों ने कौमी खेल में दोबारा से नई जान डाल दी। अफसोस हुआ, एक स्पोर्ट्स मैन के दौर में खेल के मैदान बंद हुए। वज़ीर स्पोर्ट्स पंजाब खेलों के मैदान आबाद करेंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम ने कहा है कि टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, यही टीम वर्ल्ड कप जीतेगी।